हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस. मैंने 1 to 12 आपसे बोले थे कि प्लीज़ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 12. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम 14 to 20 at the end of this exercise. So try the question number after 12. You can try the question number 13 also. And now I am discussed you today question number 14. Choose a random one and discuss you with the question number 16, and then discussed you with question number 18 first as well as the second, and then you can try the rest of the question, and after that we will discuss you on tomorrow. So come to question number 14. The length of the common chord of two intersecting circles is 30 centimeter. Means the length of the common chord of two intersecting circles. Now come to the figure. First see how to make the figure. One circle and that is the second circle. Both the circle intersect at point A and B, and the common chord is AB. AB जो है बेटा वो इस chord की भी, इस circle के लिए भी chord है और इस circle के लिए भी chord है. तो AB is a common chord and the length of the common chord is given 30 centimeter. And the radius of both of the circles, radii, or you can say radii, the 25 and 17 centimeter is given. So suppose the radius OA is 25 centimeter and O dash A is 17 centimeter. You need to find out the distance of OO dash. You require to find out the distance of OO dash. तो फर्स्ट वी आर गोइंग इन द सर्किल ऑफ OAM. OM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बाइसेक्ट करेगा AB को बेटा. सो AM इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाई इन पाइथागोरस थ्योरम. OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. OA इज 25 स्क्वायर, AM is 15 square, and you can find out OM square. That is 625 minus 225 is OM square, or you can say OM square is 400 and OM is 20 centimeter. Now after that you can again try in triangle O dash AM. So O dash A square, again apply the Pythagoras theorem. O dash M square plus AM square. O dash A is given is 17 square. O dash M we need to find out, and AM is again 15 square. So 17 is 289 minus 225 is O dash M square. O dash M square is 64. Now you can say O dash M is 8 centimeter. So now OO dash means O dash M plus OM. So O dash M is 8 and OM is 20. So your answer is 28 centimeter. Is it clear, children? Now come to the next one. 16 question number. I just solve the few steps of this question because ज़्यादा time consume हो जाता है फिर. So just read the question and then discuss what exactly given, what exactly to prove, and what is the steps of this question. So क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. एंड कॉपी लेकर के बैठिए वीडियो देखते टाइम और नोट डाउन करते रहें एज इट इज़. राइट, नाउ कम टू द पॉइंट. एंड क्वेश्चन नंबर 16. लिसन केयरफुली and read the question very carefully. If a diameter of a circle is perpendicular to one of two parallel chords, means the given is two parallel chord and diameter जो है वो अभी एक parallel chord के perpendicular बोल रहा है. I repeat again, if a diameter of circle is perpendicular to one of two parallel chords of the circle, just
मेक द डायग्राम टिल फ्रॉम दिस लैंग्वेज, यहाँ तक के लिए हम डायग्राम शो करते हैं. One is a circle, the diameter is this one, you can say PQ. PQ is a diameter, and PQ is a diameter, and the given is PQ is perpendicular on AB. For example, ये given हो गया आपको, एक इस पर ये perpendicular है. आपसे कह रहा है कि ये डायमीटर जो है वो इस पर भी परपेंडिकुलर है, CD पर भी परपेंडिकुलर है. ये प्रूव करना मीन्स वी नीड ON परपेंडिकुलर ऑन CD, एज वेल एज वो आपसे कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्ट इट, एज वेल एज वो आपसे कह रहा है कि ये बाइसेक्ट भी करता है CD को. मीन्स हमें प्रूव करना है CN इक्वल्स टू DN, और ये प्रूव करना है कि ON बाइसेक्ट CD. एंड व्हाट एग्जैक्टली गिवन, लैंग्वेज में उसने गिवन है, मैंने लिखा OMB इज 90 डिग्री, और यू कैन से OM परपेंडिकुलर ऑन AB. ये पार्ट गिवन हो गया. एज वेल एज गिवन पार्ट इज AB पैरेलल टू CD. मैंने एरो साइन बनाया है, AB पैरेलल टू CD. सो हाउ टू वेरीफाई और हाउ टू प्रूव दिस वन. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ज्वाइन कर लिया हमने OB एंड OC को ज्वाइन कर लिया, राइट. आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ दिस सबसे पहले आते हैं हम CD पैरेलल टू AB and PQ is a just line or transverse ray, और आपके पास हम कह सकते हैं एंगल दिस इज इक्वल्स टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज CD पैरेलल टू AB, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास ONC इक्वल हो गया OMB, and OMB is given 90 degree, so that ONC is also be a 90 degree. O एंगल OMB गिवन था आपको 90 डिग्री, ये गिवन था, तो बेटा ONC अपने आप ही 90 डिग्री प्रूव हो गया. तो ये पहला आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड, जिसमें लिखा था ON परपेंडिकुलर ऑन CD. पहला पार्ट क्लियर हो गया. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ. हमने ट्राइंगल चूज किया MOB एंड द ट्राइंगल इज NOC. MOB, लिसन केयरफुली, MOB NOC. Now the first point is angle, this angle is equals to this alternate interior angle. Again angle this is equals to this alternate interior angle. दो पॉइंट हो गए. And OB is equals to OC, radius of a same circle. Now the congruency is AAS congruency. That is a AAS congruency हमने प्रूव कर दिया. Now you can say OM is equals to ON. बड़ी मज़ेदार चीज़ आ रही है. OM इज इक्वल्स टू ON बाई CP/CTC, ये आप कह ही देंगे. और आप मुझे ज़रा बताइएगा द कन्वर्स थ्योरम दैट इफ द इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू कोड्स फ्रॉम द सेंटर, राइट, हैंस कोड्स इज ऑल्सो इक्वल. ये हमने थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम पढ़ी थी, राइट, कि अगर सेंटर से कोड्स की डिस्टेंस सेम है तो वो कोड्स आपस में इक्वल होंगी. सो आप ये स्टेटमेंट नोट करेंगे, यानी लिखेंगे. कन्वर्स थ्योरम ऑफ द सेकंड थ्योरम थी, राइट, स्टेटमेंट लिखेंगे कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड्स इज ऑलवेज, कोड्स आर इक्वल. सो यू कैन से AB इज इक्वल्स टू CD, राइट. और OM परपेंडिकुलर था BM के, तो ऑब्वियसली ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब ये हमें इक्वली डिवाइड भी करता है, बाइसेक्ट भी करता है. सो यू कैन से हैंस द सेकंड थ्योरम पार्ट इज ON bisect CD. I repeat again the few steps again. First, prove this congruency. After prove that congruency, you can say ON is equals to OM. Now converse theorem is कि equidistance from the chords are always equal. तो ये chords आपस में equal होंगी. chords आपस में equal होंगी तो उनकी ये perpendicular distance के साथ bisect करेगा, तो ये भी equal हो जाएंगे. मीन्स ON bisect करेगा फिर CD को. तो ये आप प्रूव कर सकते हैं. इसको एक बार और वीडियो वॉच कर लेना इस स्टेटमेंट के लिए स्पेशली. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, अब हम आ रहे हैं 18 पर. वेरी नाइस क्वेश्चन. यू नो, इन द गिवन फिगर
given below, first figure, this one, OD is perpendicular to the chord AB of a circle. पहले नज़र घुमा के देख ले कहाँ पर क्या है. OD it is perpendicular on AB, तो obviously OD bisect AB. Clear? और bisect means हो जाता है, listen carefully, bisect means हो जाता है D is a midpoint of AB, right? And BC is a diameter, given था आपको, BC is a diameter, right? And O is a midpoint. अब ज़रा पूरा ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABC, see the whole triangle. और मिड पॉइंट थ्योरम, नो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आई थिंक सो. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज, व्हाट अबाउट दिस? इन ए ट्राइंगल, इफ यू जॉइन द टू मिड पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंट साइड, it is parallel to the third side, right? मीन्स अगर आपको याद हो, मैं बना देता हूँ, पहले एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, डोंट वरी, शायद कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आपको स्टेटमेंट याद आ जाए, राइट? बेसिकली यू ऑल नोज वेरी वेल दैट आई एम ए टीचर ऑफ द सीनियर क्लास, सो कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट हमें सोचना होता है कि वो कन्वर्स था या एग्जैक्ट था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसे कन्वर्स बोला है वो हमेशा कन्वर्स ही रहती है. डिपेंड ऑन द राइटर पे डिपेंड कर जाता है, हमने किसे एग्जैक्ट बोला और किसे क्या बोला. ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट में था कि द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड is always parallel to the third side. Midpoint of the two side is always parallel to the third side. DE is always parallel to BC, right? And DE is half of BC. ये थ्योरम का स्टेटमेंट था. अगर आप दो मिड पॉइंट को किसी ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये पैरेलल होगी हमेशा थर्ड साइड के, और साथ ही साथ हाफ भी होगी, यानी डी ई इज हाफ ऑफ बी सी. तो ज़रा यहाँ आइए, डी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट? आपने इन्हें ज्वाइन कर दिया. तो अब ट्राइंगल थोड़ा सा इसे रोटेट कर लो पिक्चर को, तो आप देखिए मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, इफ़ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड दैट इज़ अ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसके पैरेलल हो गई. और मैंने बोला हाफ ऑफ इट, तो मीन्स ओ डी इज़ हाफ ऑफ ए सी. तो आप बता सकते हैं ए सी कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ओ डी. ए सी इज ट्वाइस ऑफ ओ डी. इज इट क्लियर? नाउ ये इट इज़ द सेकेंड प्रूफ. ये पार्ट आपके पास प्रूव हो गया, राइट? करेक्ट. अब ज़रा इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. इफ़ ए बी एंड ए सी आर कॉर्ड्स, ज़रा देख लें कहाँ पर है कॉर्ड, ए बी और ए सी आर द कॉर्ड्स. वेरी गुड. ए बी इक्वल्स टू ए सी, अरे वाह, बल्ले बल्ले हो गई भाई. ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों कॉर्ड हो गई. और साथ ही साथ उसने बोला है ओ पी हमने परपेंडिकुलर डाला है, राइट? ओ पी परपेंडिकुलर डाला है ए बी पर, और ओ क्यू परपेंडिकुलर डाला है ए सी पर. काफ़ी सारी चीज़ें दे दी, सिर्फ प्रूफ करा रहा है BP equals to QC. The first thing and the most important thing, the chord AB, the whole chord AB is equals to given AC. Listen carefully, बहुत carefully सुनना है. AB is equals to AC. So distance from the center of both the chord are always equals, means ON is equals to OM by theorem. अगर chords equal हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होंगी. जिनसे ये इतना सा पार्ट इतने से पार्ट के इक्वल हो गया. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा. एज वेल एज जब आपने ओ पी परपेंडिकुलर डाला था ए बी पर, तो ये इसे बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब इसे भी बाइसेक्ट किया. लिसन केयरफुली, जहाँ बार यूज़ कर रहा हूँ. और ओ क्यू ने ए सी को भी बाइसेक्ट किया. अब दोनों क्योंकि कोड इक्वल हैं तो जितना बी एम होगा उतना ही हमारा सी एन होगा. भाई ये भी बाइसेक्ट कर रहा है. अगर ये सपोज 10 है
तो ये 5 रह गया, ये 10 है तो ये भी 5 हमारे पास आ गया, ये दोनों सेम हो गए। अब जो हम प्रूव करने जा रहे हैं बेटा वो देखिएगा कैसे करेंगे प्रूफ हम। अब हम लेंगे ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, जहां सर डॉट लगा रहे हैं, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है बाय लीनियर पेयर अगर ये 90 है तो इनसाइड भी 90 होगा, बाय लीनियर पेयर तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट, लिसन केयरफुली। सेकेंड पॉइंट, BM इज इक्वल्स टू CN, ऑलरेडी प्रूव, पहले ही थ्योरम से हम कह चुके हैं कि जो BM है वो CN के इक्वल हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब जो थर्ड पॉइंट आ रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताएं OQ इज इक्वल्स टू OP बिकॉज रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल, राइट। OQ को यू कैन से ON प्लस QN and OP you can say OM plus PM, am I right? अब गौर से देखना, ON और OM को आप ऑलरेडी प्रूव कह चुके हैं, तो OM और ON इक्वल कह चुके हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बोथ इक्वल। तो QN किसके इक्वल आ गया? PM के, मीन्स QN इज इक्वल्स टू PM। अब वापस आ जाइए कॉन्ग्रुएंसी पे जो मैं ऑलरेडी प्रूव कर रहा था, उससे पहले आप ये प्रूव कर देंगे 3 स्ट्रेट लाइंस। अब आइए वापस, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल QNC एंड ट्राइंगल, मैंने क्या लिया है QNC, यहाँ लूँगा PMB। सबसे पहले 90 डिग्री 90 डिग्री, या छोड़ दीजिए 90, पहले आप बोल दीजिए CN इक्वल्स टू BM, फिर कहिए QN इज इक्वल्स टू PM, राइट। फिर कहिए 90 डिग्री 90 डिग्री, और बेटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया साइड एंगल साइड, और अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो बाय CPCT यू कैन से QC इज इक्वल्स टू BP, QC is equals to BP by CPCT. Is it clear? So now you can enjoy and attempt the rest of the question. If you have any problem, we will discuss tomorrow. Thank you.